नमो लोये सौर्यन्तानं नमो लोये सौर्यदानं नमो लोये सौवागिर्यानं नमो लोये सौज्यायानं नमो लोये सौत्रिकावती सावनं ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यं जयन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः मंगलं भगवान् मंगलं भूतमोहि मंगलं कुंकुमधारी भुजेन्द्रमोसुमंगलं नमः समर्पयामि स्वानुभूत्या तथास्ति चित् स्वभावाय भवाय सर्वदा विभाव निरुद्ध निराकार। કળશ અમૃત ભગવાન અમૃતચંદ્રાચાર્ય રચિત કળશ અમૃતનો સ્વાધ્યાય ચાલે છે. એમાં મોક્ષ અધિકારનો છઠ્ઠો કળશ એટલે કે સળંગ કળશ 185 નો સ્વાધ્યાય આપણે કરી રહ્યા છીએ. આ કળશ સમયસારમાંથી તેમજ કળશ અમૃતમાંથી આપણે વાંચનમાં લીધો, 2 વખત વાંચનમાં લીધો અને તે પછીથી દરેક વખતે આપણે પૂજ્ય ગુરુદેવ કાંજી સ્વામીએ જે વિસ્તાર કર્યો છે તે પણ આપણે લીધો છે. આજે પૂજ્ય ગુરુદેવે જે વિસ્તાર કર્યો છે એનો શેષ ભાગ લઈશું. સહેજ પુનરાવર્તન કરીએ જેથી અનુસંધાન પ્રાપ્ત થાય. મૂળ કળશની અંદર તો એ ભાવના ભાવવામાં આવી છે કે જેમના ચિત્તનું ચરિત્ર ઉદાર ઉચ્ચ ઉજ્જવળ છે એવા મોક્ષાર્થીઓ એટલે કે જે સમ્યક દર્શન સહિત છે અને એવો પુરુષાર્થ કરી રહ્યા છે એમની અહીંયા તો વાત છે. એટલે જેમના ચિત્તનું ચરિત્ર ઉદાત્ત એટલે ઉદાર ઉજ્જવળ છે, ઉચ્ચ છે એવા મોક્ષાર્થીઓ આ સિદ્ધાંતને સેવન કરો કે હું તો શુદ્ધ ચૈતન્યમય એક પરમ જ્યોતિ જ સદાય છું અને આ જે ભિન્ન લક્ષણ વાળા વિવિધ પ્રકારના ભાવો પ્રગટ થાય છે, પોતાની પર્યાયમાં જે ભાવો થાય છે એ ભાવો હું નથી, એ બધા મારાથી જુદા છે, બધા મને પરદ્રવ્ય છે. હું તો શુદ્ધ ચૈતન્યમય એક પરમ જ્યોતિ છું. બસ આ વાતને હંમેશા સ્મરણમાં રાખો અને એની જ ભાવના ભાવો એટલે સેવન કરો. કળશ અમૃતમાં પણ એ વાત લીધી છે અને શરૂઆત જ એ રીતે કરી અને એમાં પછી મોક્ષાર્થી કોને કહેવાય એની થોડી વ્યાખ્યા પણ સાથે લઈ લીધી કે મોક્ષાર્થીઓ અર્થાત સકળ કર્મનો ક્ષય થતા જે અતિન્દ્રિય સુખ પૂર્ણપણે સુખ જે પ્રાપ્ત થાય છે એને જે ઉપાદેય માને છે એ મોક્ષાર્થી છે. એની જેને ભાવના છે એને ઉપાદેય માને છે એવા એ મોક્ષાર્થી છે. અને પછી આગળ બીજી વાત પણ લીધી. મોક્ષાર્થી જીવ કેવા છે કે સંસાર શરીર ભોગથી રહિત છે. આ જે મોક્ષાર્થી છે સાચા મોક્ષાર્થી એવા હોય અને એમના મનનો અભિપ્રાય કેવો છે તો પરમાર્થ રૂપ છે. એટલે એ પરમાર્થ કેવો છે એને અહીંયા સમજાવ્યો છે કે સ્વ સંવેદન પ્રત્યક્ષ છું જે હું જીવ દ્રવ્ય સ્વ સંવેદન પ્રત્યક્ષ હું જીવ દ્રવ્ય છું તે શુદ્ધ નાયક સ્વરૂપ પ્રકાશ સર્વકાળ નિશ્ચયથી હું છું. અને બીજી વાત સાથે લીધી કે શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ સાથે જે મળતા નથી, અણમળતા છે એવા જે આ રાગ આદિક અશુદ્ધ ભાવ અને શરીર આદિ સુખ દુઃખ આદિ નાના પ્રકારના અશુદ્ધ પર્યાયો એ બધા જીવ દ્રવ્ય સ્વરૂપ નથી. એ જીવ દ્રવ્ય સ્વરૂપ નથી, એ બધા અશુદ્ધ ભાવ છે, એ મારાથી જુદા છે, એ ચૈતન્ય સ્વરૂપ સાથે મળતા નથી. નિજ સ્વરૂપને જ્યારે અનુભવીએ છીએ ત્યારે કહે છે કે નિજ સ્વરૂપને અનુભવતા એ જેટલા પણ રાગ આદિ અશુદ્ધ ભાવ પર્યાયો છે તે બધા મારાથી જુદા છે. એટલે મને તો પરદ્રવ્ય રૂપ છે, એ મને ઉપાદેય નથી, એ હે છે. કેમ કે શુદ્ધ ચૈતન્ય લક્ષણ સાથે મળતા નથી અને હું તો શુદ્ધ ચૈતન્ય લક્ષણ રૂપ ભગવાન આત્મા છું. સમસ્ત વિભાવ પરિણામો થી જુદો છું એટલે સમસ્ત વિભાવ પરિણામ મને હે છે. તો આ રીતે 185મો કળશ છે. એનો શેષ ભાગ આજે લઈએ છીએ. કળશ પ્રવચન ભાગ 5મો, પાના નંબર 553. અહીંયા ઉપર બીજા પેરેગ્રાફથી શરૂ કરીને પૂજ્ય ગુરુદેવ સમજાવે છે. મુમુક્ષુ અહીંયા એક વચ્ચે પ્રશ્ન કરે છે અથવા તો એ વાત મૂકે છે કે દયા પાળવી તો જીવની શોભા છે ને. ત્યારે પૂજ્ય ગુરુદેવ એનો ઉત્તર આપે છે કે દયા કોની? પોતાની. પરની દયા કોણ પાળી શકે છે? તો ત્યાંથી શરૂ કરી અને આજે આગળ આપણે લઈએ છીએ.
दया पालना तो जीव की शोभा है। दया किसकी? अपनी। पर की दया कौन पाल सकते हैं? उसके आयुष स्त्री का प्रेम नहीं है उसको। पति को पत्नी का प्रेम है कि नहीं? तो पत्नी मर जाती है तो क्यों रखते नहीं? फिर को रख सके तो डॉक्टर हो तो भी मर जाते उसी स्त्री। बराबर है भाई। 25 वर्ष की उम्र हो, पत्नी 22 वर्ष की उम्र हो, मर जाए तो रखते हैं? रख ही सकते हैं? क्या रखे? उसकी स्थिति हो तो रहते, नहीं तो कौन रख सकते हैं? पर की दया पाल सकते हैं, स्त्री को रख सकते नहीं, तुम पर की पाल सकते हैं। કેમ अपनी पत्नी में वालामा वाली, जिसको लोग अर्धांगना कहते हैं, अर्धांगना, अर्ध अंग, मेरा अंग ना उसका अंग, लोगों को होकर एक अंग है, बूढ़े नहीं है। अर्धांगना कहाँ से लाया है? तो ये भिन्न है, तुम भिन्न है, तो उसको भी प्रेम है। तो डॉक्टर हो, बराबर डॉक्टर तो कई रख सकते नहीं, आंसू पाते। और पत्नी के पण जाए छले आखिर, तुम्हारी उम्र छोटी है, मैं चली जाता हूँ, और तुम्हारी प्रकृति जरी ऐसी तीखी है तो दूसरी करना, नहीं तो तुम्हारी सेवा कौन करेगा? तुम्हारे तो क्या पर लग्न किया है? आप तो लग्न जिसको लग्न किया हुआ है ऐसे चलते हैं। 25-30 वर्ष में बढ़ो छोटी, नहीं स्त्री मर जाती हो, डॉक्टर हो, वकील हो, बड़ा हो, तुम्हारे आ तो हमारा घर नहीं बात है यार। घर में हमारा घर में हमारे शिवलाल में आता ने भागीदार था, दुकान में हिस्सेदार। तो उम्र तो मोटी थी नहीं, 53 वर्ष की। पत्नी मरी गई तो पत्नी कहती गई कि तुम्हारी प्रकृति जरी ऐसी है, तो मैं बावच नहीं था, तो तुम्हें लगन करना। 53 वर्ष की उम्र थी, 53 समझे, 50 वर्ष नहीं। हमारा भागीदार था। શું કહેવાય તમારે? तो पीछे कहेगी पण कहीं મળે કોણ? 53 વર્ષે કોણ પૈસા આપે? बुद्धि जाडी હતી, કોળી જતી बुद्धि वाणी आता पण ना, मैंने हमारा भागीदार था दुकान का। 59 से 68, 9 वर्ष दुकान में रही। 59 की साल से 68 साल, 9 वर्ष, 5 वर्ष तो दुकान चलाया था। मैं 70 उम्र से 22, 70 वर्ष की उम्र से 22 वर्ष, तो हमारा भागीदार था। तो उसकी पत्नी मरी गई, एम कही गई थी, कहो तुम्हें बहु वलखाना के पैसा देवान बैठी, कौन दे रहे? तुमने कौन आचव छे? तुम्हारी प्रकृति बराबर ठीक नहीं, तो पत्नी हो तो तुमने साचव छे, कौन साचे? धूल साचवे। मूर्खा ना घर है बदा। ममता ममता ममता, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरे को कौन साचवे? मेरे को मैं साचू हूँ। मैं आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, मैं उसके मैं संभाल करूं, दूसरे की संभाल मैं कर सकता नहीं। ये है कि देखो, सदा का नीचा, ठीक है, शुद्ध स्वरूप चैतन्य से अण मिलते हैं क्या? राग आदि अशुद्ध भाव, राग आदि शब्द पर है ना, तो राग, द्वेष, विषय वासना, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, कपट आदि, ये सब अशुद्ध परिणाम, मलिन परिणाम है। तो राग आदि, दया, दान, व्रत, भक्ति का भाव भी राग अशुद्ध है। ये राग शुद्ध नहीं, अपना स्वभाव नहीं। ये कहते हैं राग आदि अशुद्ध भाव, शरीर आदि सुख दुख आदि, शरीर में कोई अनुकूल प्रतिकूल सुख दुख लगे, ये नाना प्रकार अशुद्ध पर्याय, ते अहम नास्मि, ते सर्व जीव द्रव्य स्वरूप नहीं, ये मैं नहीं। शरीर में रोग हो, निरोगता, उस जड़ की चीज है, मेरी नहीं, मेरे में नहीं। पुण्य पाप का भाव होता है, यह राग है, मेरा नहीं। इतना से छूटना। तो कहते हैं सर्वस्व एम कहा, देखो है
सदा का आना देखिए, शुद्ध चैतन्य स्वरूप से अण मिलते हैं। कौन विविधा? ये ते विविधा भावा, राग आदि अशुद्ध, सुख दुख आदि प्रकार अशुद्ध पर्याय, ये सब जीव द्रव्य स्वरूप नहीं, ये मेरी चीज नहीं। मेरी चीज से झूठी छूटी पड़ जाए वो चीज मेरी नहीं। राग आदि छूटी जो आत्मा निर्मल होता है, परमात्मा शुद्ध, तो राग रहते नहीं। तो राग जो अपनी चीज हो छूटे पड़े क्यों, जुदी पड़े क्यों? तो जुदी है तो जुद पड़ जाती है, मैं अपनी चीज है नहीं। समझ में आया? अशुद्ध आदि राग में नहीं, सब जीव द्रव्य नहीं। कैसे है शुद्ध भाव? पृथक लक्षणा। क्या उसमें 3 अर्थ है। मेरे शुद्ध चैतन्य स्वरूप से नहीं मिलते हैं। पुण्य पाप का भाव, स्वभाव मेरी चैतन्य जात है, जानन स्वभाव है, उससे पुण्य पाप का भाव पृथक लक्षण है। क्योंकि मैं चैतन हूँ तो राग में चैतन का अभाव है, तो यह ज्ञान है। मैं चैतन हूँ तो ये राग विकार है, मैं निर्मल हूँ तो ये विकार है, तो ये विपरीत है। पृथक लक्षण है, विपरीत है, अज्ञान है। समझ में आते हैं? भाषा तो सादी है पण मार्ग तो बसा भगवान ऐसा है। मेरी चीज जो न रहे, ज्ञान ज्योति जो फल ज्योति है। अग्नि सदा रखते हैं ना मानस, नहीं? अग्नि सदा रखे को क्या? तुम्हारे पारसी में तो अग्नि बहुत रखे, खबर है? हमारे ત્યાં હતા ભાઈ આપણે પારસી, અમે ગયા था પગલા કરવા। એક વાસ્યના ગુરુ હતા, ત્યાં લઈએ તો પગલા કરવા લઈ ગયા હતા। પછી ત્યાં વ્યાખ્યાન ચાલતો હતો ને, 95ની સાલમાં ચાલતે। હા, સામે ઘર હતું, પગલા કરવા મારા પધારો ગયા હતા। એ પારસીના ગુરુ હતા, તે અગ્નિ સદાય 24 કલાક રાખે। અગ્નિ એ તો ખબર है। हाँ, ये अग्नि नहीं, आज चैतन अग्नि सदा रखना अपने में, हम कहते हैं। समझ में आया? वो बहन का एक शब्द है ना, अग्नि में उदय नहीं। क्या शब्द सुनते? हाँ, कंचन को काट नहीं। कंचन है सोना, उसमें काट होता है, काट काई नहीं होती। लोहा को काई होती है, कंचन को काई नहीं होती। कंचन में काई नहीं, अग्नि में उदय समझ वो जीना जीवन जिया दम कूता है, तो बहु पलकड़ा थोड़ा एकदम ससरा तड़का आकरा पड़ बन जाए। अग्नि में उदय नहीं, चल हूँ कहूँ। कंचन में काट नहीं है, भगवान आत्मा में आवरण ने अशुद्धता ने उणप नहीं। ये सब बहन कहते हैं। बहन है क्या है? अशुद्ध असंख्य भव का जाति स्मरण है, असंख्य अबज का भव का भाव, थोड़ा भाव 9, असंख्य अबज वर्ष की स्थिति का है। बहन बैठे उसके अशुद्ध वाणी है। अभी पुस्तक छपा है, 20,000 छपा है, 10,000 नवा छपते है। उसमें एक वाणी शब्द है ऐसा कि अग्नि में उदय नाम दिमक सूक्ष्म दिमक नहीं होता, अग्नि में दिमक होता है। ऐसे कनक को काट होता है, काय एम आत्मा भगवान अंदर चिदानंद प्रभु है, उसमें तो कर्म ने राग द्वेष का आवरण नहीं, राग द्वेष की अशुद्धता नहीं और कमी नहीं, अपना पूर्ण स्वभाव से भरा ऐसा उणप नहीं, ऐसी आत्मा की चीज है। जो सूक्ष्म है वो दर्दश तुमको दिया, ये वक्त याद था, ये पुस्तक है, तुमको जब समझे न समझाए ऐसी चीज है। वो जीनी बात है।
बहन की चीज बनाए। यहाँ कहते हैं पृथक लक्षणा, मेरे शुद्ध चैतन्य स्वरूप से नहीं मिलते हैं। माटी मेरी चीज भिन्न है, वो चीज भिन्न है, ऐसा भेद विज्ञान करके अपना आत्मा में अनुभव करना, वही मुक्ति होने का, आनंद प्राप्ति करने का उपाय है। कलश टीका 185 चलते ना, यहाँ आया है कैसे हैं शुद्ध भाव प्रथम लक्षण। क्या कहते हैं, जिसको धर्म करना हो तो धर्म तो आत्मा का शुद्ध स्वभाव जो परिपूर्ण पड़ा है उसकी दृष्टि करने से और उसका अनुभव करने से धर्म होता है। तो शुद्ध जो चैतन्य शुद्ध है उसका अनुभव करने से राग आदि भाव जो है, चाहे तो दया दान व्रत भक्ति का राग हो कि शुभ राग हो, ये आत्मा का स्वभाव से पृथक लक्षण है, भिन्न स्वरूप है। आज यही बात है, चाहे तो दया दान व्रत भक्ति तक का परिणाम हो, एक राग है, ये आत्मा चैतन्य लक्षण आनंद स्वरूप, उसका अनुभव करने पर ये राग पृथक भिन्न लक्षण वाला है और अपना चैतन्य स्वरूप से ये राग विपरीत लक्षण वाला है। और इस स्वरूप चैतन्य का अंतर्दृष्टि से अनुभव करने पर ये राग आदि जो है ये अज्ञान भाव है। अज्ञान भाव का अर्थ मिथ्या दृष्टिपना नहीं, पर राग भाव में चैतन्य स्वरूप का, चैतन्य का किरण अंश का अभाव है, वो कारण राग भाव को अज्ञान कहने में आता है। हाँ, अभी बात है, सूक्ष्म बहुत। सेठ कहते थे कि हम क्लास में पढ़ रहे थे, શું કહેવાય, કોલેજ में कुंदाचार का, पर आ दृष्टि नहीं है। नहीं तो कहते थे तो सर्वज्ञ परमात्मा जिनेन्द्र देव का श्रीमुखे निकली दिव्य ध्वनि है। ये दिव्य ध्वनि के अनुसार दिगंबर संतो ये शास्त्र रचा। ऐसी बात ये दूसरे कहीं है नहीं। समझ में आया? उसके संप्रदाय में भी गड़बड़ हो गई है। ये अपना चैतन्य शुद्ध आनंद कंद प्रभु, उसकी दृष्टि हुए बिना, सम्यक दर्शन हुए बिना, व्रत ने तपने भक्ति आदि भाव है, वो धर्म है, ऐसे मानते हैं। ये दृष्टि मिथ्यात है। क्योंकि भगवान चैतन्य स्वभाव पूर्ण स्वरूप अंदर है और अतीन्द्रिय अनाकुल आनंद का रस कंद प्रभु आत्मा तो है। उससे वो पुण्य ने पाप का भाव दुख रूप है, आकुलता है, स्वभाव से पृथक भिन्न लक्षण है। स्वभाव चैतन्य स्वरूप का अनुभव, उससे वो राग अज्ञान भाव है और स्वरूप चैतन्य का अनुभव में राग स्वभाव से विपरीत भाव है। ऐसी बात है भगवान।
इतना दिगंबर संतों की वाणी ऐसी है, ऐसी वाणी कहीं है नहीं, ऐसा स्वरूप ही है। समझ में आया? अनंत काल हुआ, सवेरे में कहा था नहीं, वो छठाला में आता है नहीं, मुनि व्रत धार अनंत बैर विवेक उपजायो, आते है ना भैया, वो छठाल में आता है। मुनि व्रत धार दिगंबर मुनि हुआ, नग्न मुनि हुआ, 28 मूर्गुण पाया, पंच महावर धारण किया। मुनि व्रत धार अनंत बैर विवेक, ग्रीवा ने स्थान है, देव का स्थान है नव विवेक, अनंत बैर उपजा। तो आत्मज्ञान और राग से भिन्न ये क्रिया कांड का विकल्प जो राग है उससे भिन्न भगवान अंदर है, उसका अनुभव ने दृष्टि नहीं किया। वो बिना जन्म मरण का अंत आया नहीं। बात सूक्ष्म है भगवान। ये वो कहते हैं आचार्य अमृतचंद्र आचार्य, कुंद आचार मुनि दिगंबर संबत 49 में हुआ यहाँ भरत में, और भगवान पासे गए थे। भगवान विराजते हैं सिमंदर भगवान महाविजय में, वर्तमान मौजूद विराजते हैं। 500 धनुष का देह, करोड़ पूर्व का आयुष्य है, और अब्जों वर्ष से केवल ज्ञान में विराजते हैं। और समोत्सरण में इंद्रों ने गंधर्वों, सिंह ने वाघ समोत्सरण में आते हैं। देवधनी होती है अभी महाविद्य में, उसके पास कौन कौन आचार्य गए थे? हाँ, दिगंबर मुनि था, एक मोर पीछे कमंडल, अंदर में आनंद 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 आनंद। मुनि का भावलिंग तो अंतर में अतीन्द्रिय आनंद का स्वसंवेदन उग्र प्रचुर 5वीं गाथा में, समय सार की 5वीं गाथा में। हमारा निज वैभव मुनि का धूड़ का नहीं, धूड़ એટલે पैसा, पैसा धूड़ है ना, ये हमारी लक्ष्मी नहीं, शरीर भी हमारी लक्ष्मी नहीं, और अंदर में पाप का विकल्प तो मुनि को होता नहीं। शुभ राग पंच महाव्रत आदि का होता है, ये भी मेरी चीज नहीं, वो भी दुख रूप भाव है। मैं उससे भिन्न स्व संवेदन आ गया पैदा अपने अंदर, आ गया ना अंदर स्व संवेदन प्रत्यक्ष। चौथी पंक्ति है 5वीं, स्व संवेदन प्रत्यक्ष। अतीन्द्रिय आनंद का अपने स्वभाव से प्रत्यक्ष वेदन करना, और उग्र आनंद का सम्यक दृष्टि को भी स्वसंवेदन आनंद का अंश का वेदन है। सम्यक दृष्टि को न हो तो ये सम्यक दृष्टि है ही नहीं। यहाँ तो सम्यक दृष्टि है, उसको अपना चैतन्य स्वभाव में जो आनंद है उसका एक अंश तो व्यक्त प्रकट वेदन में सम्यक दृष्टि। चौथे गुण स्थान में सैनिक राजा भगवान के वक्त में हुआ, क्षायक संकीर्ति, चारित्र नहीं था, व्रत नहीं था, पर आत्मा का भान हुआ, अंदर आनंद का वेदन था, और उसमें तीर्थंकर बन गया। पर पूर्वे मुनि की असातना सच्चा संत था, उसकी गला में वो सर्प डाल दिया, उससे 7वीं नरक का आयु बन गया था। पीछे
उसकी स्त्री चेलना रानी संकीती थी, ज्ञानी थी, अनुभवी थी, आनंद का अनुभवी। उसने उसको मुनि पास ले गया। ત્યાં सर्प नाखेला तो जो तेरा गुरु, मैं सर्प नाख्या तो निकाल देगा, और चिल्लाना कि हमारा गुरु ऐसा न हो, हमारा गुरु तो ऐसा शांत आनंद 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 अतीन्द्रिय आनंद में रमने वाला, झूले झूलने वाला है। चलो क्या देखे तुम सर्प, कीड़ियां, हजारों कीड़ी, लाखों कीड़ी, तो पूंजी कर धीमे से चिल्लाना उपाड़ लिया। मुंडी तो आनंद में थे अंदर, आम आंख में चेत, ओहो सैनिक क्या हुआ महाराज, मैं तो ऐसा अपराध किया था, पीछे उसके आत्मज्ञान बनाया। हजारों रानी थी, राज था, पर आत्मज्ञान संकेत हुआ उसके पास, मुनि के पास संकेत हुआ। संकेत का अर्थ अंदर में राग का विकल्प से जो विकार है, उससे भिन्न भगवान आनंद ज्ञान स्वरूप है, उसका भान करके प्रतीति अनुभव होना, उसका नाम सम्यक दर्शन कहने में आता है। तो ये सम्यक दर्शन हुआ, पर नरक का आयुष बंध गया था पहले, वो तो टूटते नहीं, तो 7वें नरक का आयुष बंध गया था, तो 84,000 वर्ष की स्थिति रह गई। आत्मज्ञान पाया, अनुभव हुआ आनंद का। चारित्र नहीं है, व्रत नहीं है अंदर, व्रत तो सम्यक दर्शन पीछे है, आनंद की उग्रता का वेदन आता है, तब उसको व्रत का विकल्प उठते हैं, उसको व्यवहार कहने में आता है। ये तो उसके था नहीं, तो नरक में तो गए, अभी नरक में है। 84,000 वर्ष स्थिति, 28,000 वर्ष गई, 81,000 वर्ष बाकी है, जहाँ से निकल कर तीर्थंकर होगा। आगामी 24 में सैनिक राजा का जीव व्रत तब त्याग नहीं था, अपन सम्यक दर्शन हुआ, अंतर आनंद का स्वाद आया। उसकी स्थिति में ત્યાં भी आनंद का स्वाद आता है। नरक में जितना कषाय है इतना दुख है, जितना कषाय ने मिथ्या गया है इतना सुख है, तो ત્યાં से निकलकर तीर्थंकर होगा। आगामी 24 में पहले तीर्थंकर होगा। ये सम्यक दर्शन का प्रताप है। અને सम्यक दर्शन बिना व्रत तप नियमित तो क्रिया करो, पर एक पण जन्म का भव का अंत आता नहीं। वो यहाँ कहते हैं सम्यक दर्शी जीव चौथे गुण स्थान हो कि पंचम गुण स्थान में हो, सावक साचा सावक हो और मुनि सच्चा हो, तो ये एम कहते हैं कि ये सब रागादि अशुद्ध भाव चैतन्य स्वरूप से अन मिलते हैं। अशुद्ध भाव पृथक लक्षण है। मेरी चीज के साथ मिलान नहीं होता उसका। सम्यक दृष्टि हो, राग आता है, रुद्र ध्यान भी होता है, और मुनि है वो ध्यान भी होता है, पर वो मेरी चीज से वो चीज भिन्न है। मेरा आनंद ने चैतन्य स्वरूप उसके साथ वो राग का मिलान होता नहीं, ऐसा संकेती को अनुभव अंदर में होता है। सेठ कॉलेज से दूसरी कॉलेज आए सेठ कहते थे हम कॉलेज में पढ़े कुंकुंदाचार्य का पुस्तक पढ़े थे, हम कहते थे आप दृष्टि नहीं थी। हाँ दृष्टि तो अलौकिक चीज, भगवान एक लाखों में करोड़ों में कोई को बान होता है।
पण सन्मुख होने की तैयारी कर सकते हैं। हजारों लाखों मानस भी अपना शुद्ध चैतन्य स्वरूप में हूँ, राग आदि में नहीं, ऐसा पृथक लक्षण से संकित सन्मुख होता है। समझ में आया? तो यहाँ कहते हैं कि सम्यक दृष्टि हुआ, अपना स्वरूप का आनंद ने ज्ञान का वेदन आया और राग आदि है, तो मेरा स्वरूप का लक्षण से ये लक्षण उसका मिलते नहीं, मेरी चीज के साथ वो मिलते नहीं। जैसे अनाज में कंकरी होती है, ये अनाज की चीज नहीं, गेहूं में कंकर होती है, ये गेहूं की चीज नहीं। ऐसे मेरा आनंद स्वरूप भगवान में ये पुण्य पाप का कंकरी होती है, ये मेरी चीज नहीं, ये तो निकालने की चीज है। आओ स्वरूप से प्रभु कहते हैं अनमिलता है ना, पृथक लक्षण स्वरूप से नहीं मिलते हैं। मैं चैतन्य स्वरूप वस्तु और आनंद लक्षण से लक्षित प्रभु, उसके साथ राग का भाव अण मिलते हैं, कोई रीते मिलान होता नहीं। है क्या लगाया था? किस कारण से अण मिलते हैं? जैसे गेहूं और कंकरी एक चीज नहीं, भिन्न चीज है, ऐसे भगवान आत्मा चैतन्य स्वरूप आनंद और दयादान राग आदि का भाव एक कंकरी समान अण मिलते मेरी चैतन्य का लक्षण से मिला नहीं होता, ये भिन्न चीज है। समझ में आया? मार्ग ऐसा है भगवान, यहाँ तो अत्यारे तो ऐसा कर दिया है, कैसा व्रत करो तप करो ने ऐसे कल्याण हो जाएगा। प्रभु ये तो अनंत वय हुआ है, वो चीज कोई अपूर्व नहीं, ये भव का अंत करने की वो चीज नहीं, चीज तो सच्चिदानंद प्रभु आत्मा सत्य नाम शाश्वत अविनाशी, चीज नाम ज्ञान ने आनंद नाम अंत अंत अतेंद्रीय सुख, उसका पूर्व भरा है आत्मा, उससे राग का लक्षण भिन्न है, मेरी चीज के साथ उसको मिलान होता नहीं। तो सम्यक दृष्टि उसको छोड़ देते हैं, दृष्टि में से छोड़ देते हैं, आदरणीय करते नहीं। आई बात से गृहस्थाश्रम में हो तो भी अपना ज्ञान का चैतन लक्षण से लक्षित होने वाला, लक्षित नाम जानने लायक होने वाला, अपना चैतन स्वभाव राग से भिन्न, ये चैतन स्वभाव से लक्षित होने वाला मेरा लक्षण। અને રાગ अचेतन लक्षण पृथक लक्षण स्वरूप से मिलते नहीं, ऐसे धर्मी अपने को राग से पृथक जानते हैं। है कि नहीं? अंदर और करने में फेर पड़ते हैं। ऐसा करते करते व्यवहार करते करते होगा भैया राग है तो अनंत बैठ गया, और व्यवहार आता भी है। सम्यक दृष्टि को आत्मा का अनुभव सम्यक होने पर भी जब लग वितराग न हो तब लग भक्ति आदि का राग आता है, पर उसको ये मानते हैं, छोड़ने लायक मानते हैं, निकालने लायक मानते हैं, रखने लायक मानते हैं। ऐसा है नहीं। नहीं दृष्टि वांचे है कि नहीं तुम्हारा पिताजी का? वांचे धर्म दृष्टि प्रकाश
बहुत इसमें भरा है। समझ में आया? हाँ हाँ, अण मिलते, स्वरूप से नहीं मिलते। किस कारण से? यत अत्रति समग्रापि मम पर द्रव्यम। ये चाहे तो दयादान व्रत की विकल्प वृत्ति उठती है, राग। ये मेरी चीज से भिन्न परद्रव्य है, मेरी चीज नहीं। ऐसा धर्मी जीव मोक्ष महल की पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन, उसमें ऐसा मानते हैं। है क्या किया? यत्र ते समग्र, राग का समग्र भाग, गुण भगवान आत्मा आनंद ने आत्मा आनंदी, ऐसा भेद का विकल्प उठते हैं। राग ये भी समग्र राग मेरी चीज से तो भिन्न है। समझ में आते हैं? सूक्ष्म बात है भगवान। तो अरूपी आत्म तत्व की सम्यक दृष्टि की बात है। ये बात कोई साधारण है नहीं। शब्दों भले सादाई में आ जाए, पर उसका वाच्य भाव अपूर्व है। कभी मिला नहीं, कभी सुना नहीं अंदर में। कहते हैं कि ये समग्र की भाव, समग्र क्यों लिया है? चाहे तो भगवान की भक्ति का राग हो, चाहे तो आत्मा में पंच महावर्त का विकल्प हो, ये समग्र भी है। मम परद्रव्यम, जिस कारण से निज स्वरूप का अनुभव करने पर, अत्र निज स्वरूप का अनुभव करने पर, अपना स्वरूप चेतन ज्ञायक जानक आनंद का अनुभव करने पर, ते समग्रापि, जितने है राग आदि अशुद्ध विभाव पर्याय, जितने अशुद्ध राग आदि भाव शुभ हो कर शुभ, दो अशुद्ध, हिंसा, झूठों, चोरी, विषय भोग वासना, ये पाप भाव अशुभ, और दया दान भक्ति व्रत भाव शुभ, पण ये शुभ ने अशुभ दो ही अशुद्ध। समझ में आया? समग्रापि, ये सब रागादि, राग द्वेष पुण्य पाप आदि का विकल्प अशुद्ध विभाव पर्याय है, मलिन दशा है, मेरी चीज नहीं। मैं तो निर्मलानंद प्रभु हूँ। सम्यक दृष्टि धर्म की पहली सीढ़ी, धर्म की पहली सीढ़ी, उसमें ऐसा मानता है। समझ में आया? मनुष्य को ना मिला, वास्तविक तत्व की दृष्टि किया नहीं तो एक पशु जैसा होता रहे। चाहे तो करोड़पति हो क्या बुजुपति हो, उसमें कुछ आत्मा का इतना लाभ है नहीं। समझ में आया? क्या किया? निज स्वरूप से भिन्न रागादि विभाव पर्याय मुझे परद्रव्य रूप है। पर पहली पर्याय कहा, पुण्य पाप का भाव विकारी पर्याय अवस्था हालत कहा, पर हवे तो ऐसा ही किया कि परद्रव्य है, मेरा द्रव्य नहीं। समझ में आया? है राजमल टीका है, उस श्लोक अमृतचंद्राचार्य का है, कुंकुंदाचार्य का मूल पाठ बीच में कुंभ का, उसका अमृतचंद्राचार्य 1000 वर्ष पहले हुआ, कुंकुंदाचार्य 2000 वर्ष पहले हुआ।
और पीछे 1000 वर्ष पहले कौन कौन अमृतचंद्राचार्य दिगंबर संत चलता सिद्ध आनंद के झूलते झूलते आनंद में झूले में झूलते थे, झूलते झूलते अशोक लग गया। समझ में आया? ये कहते हैं कि समग्र भी भाव मम परद्रव्य, जैसे शरीर परद्रव्य आत्मा से, ऐसे दया दान का भाव पण परद्रव्य है, सिर्फ है अंदर में। फायदा तो किया था बहुत, दृष्टि नहीं तो क्या थे, बोलते थे कि आप दृष्टि नहीं थी, बात तो सच्ची है। सर्वज्ञ परमात्मा जिनेन्द्र देव त्रिलोकनाथ विराजते हैं परमात्मा, दिव्य ध्वनि होती है वर्तमान में भी, और इंद्र नरेंद्र जाते हैं स्वभाव में। ત્યાં ગઈ थी भगवान પાસે कुमकुमाचार्य दिगंबर संत संवत 49, जहाँ से आकर आ शास्त्र बनाया। भगवान का आ संदेश है। पति परदेश में गए हो और कहीं नवा माल लेकर आवे तो पत्नी के क्या लाया, एम यहाँ भगवान पास गए थे तो संतो कहते प्रभु क्या लाया तुम से? तो आ लाया मैं तो के। मेरी चीज में तो अतीन्द्रिय आनंद भरा है, अतीन्द्रिय आनंद का एक अंश का स्वाद आ गयो। इंद्रना इंद्रासन भोग सड़या हुआ बिल्ली अने कुत्ता जैसा सड़ा जैसा लगे। क्या किया? यही है सम्यक दृष्टि को अपना आनंद स्वभाव की वेदन में अनुभव होने से इंद्रना इंद्रासन इंद्राणियों, जिसको अनाज का भोग खाना नहीं, जिसको 1000 वर्ष से कंठ में से अमृत जरते हैं, इसका भोग भी समकीर्ति को सड़ा हुआ कुत्ता ने बिल्ली सड़े गंध मारे ऐसा दुख लगते हैं। समझ में आया? और अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को ये भोग में मिठास नाम आह्लाद आता है, आह्लाद नाम मजा आती है, ये भाव मिथ्या दृष्टि का है। ये परद्रव्य को अपना मानते हैं। समझ में आया? यहाँ कहते हैं कि धर्मी जीव ये अशुद्ध राग आता है, भोग का राग भी आता तो है, जब लग त्यागी मुनि न हो तो ત્યાં સુધી राग आता है, पर वो जानते हैं कि राग तो दुख है। राग में शांति की गंध नहीं, दुख की गंध आती है। समझ में आया? धर्मी सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से, अपना चैतन्य द्रव्य की अपेक्षा से राग आदि दया दान महावर्त का विकल्प परद्रव्य गिनने में आया है, परद्रव्य गिनने में आया है। अपना स्वद्रव्य चैतन्य से वो भिन्न है, वो कारण से वो परद्रव्य है, छोड़ने लायक है, दुख रूप है, आकुलता है। मैं आत्मा तो अनाकुल आनंद स्वरूप हूँ, ऐसी दृष्टिवंत को है ये समग्र आपकी भावा परद्रव्य रूप है, परद्रव्य रूप है। पहले तो पर्याय कहा था, पहला कहा ने
अशुद्ध विभाव पर्याय, पुण्य पाप का भाव होता है, अशुद्ध विभाव विकारी पर्याय अवस्था है। अवस्था वस्तु टिकाई नहीं है, अवस्था या हालत है। पर यहाँ इसका सरवाला लेते ऐसे कह दिया कि जी पुण्य पाप का भाव आता है, ये अशुद्ध मलिन दशा है, ये मेरी चीज से भर है, माटी ऊपर दर है। આવી चीज है भाई। અને जिसको वो दृष्टि हुई उसका भवन तो आ गया, वो 1 2 4 भव में मोक्ष होगा। आ दृष्टि बिना महाभारत पाले, क्रिया कांड तपसा करे, महीना 6 महीना ની अपवास, और अनंत भव में रुलेगा। कुछ समझ में आता है? परद्रव्य रूप है, कारण कि शुद्ध चैतन्य लक्षण से मिलते हुए नहीं है। शुद्ध चिद घन भगवान चैतन्य लक्षण जानक स्वभाव से लक्ष्य में आने वाला प्रभु, ऐसा जानक स्वभाव का लक्षण से ये दया दान व्रत का परिणाम अपना लक्षण से मिलते नहीं, ये अपना लक्षण से भिन्न है। वो कारण से धर्मी अपनी चीज से राज को परद्रव्य स्वरूप जानते हैं। है कि नहीं अंदर सेठ? सोनकट का है। फिर तो कहते कि हम कॉलेज में पढ़े पर आ नहीं, ऐसा फिर हुआ ना, दृष्टि में फिर लिया ना। हाँ मार्ग भाई, प्रभु नो मार्ग છે સુરાનો, વીરનો માર્ગ છે સુરાનો, કાયર ના नहीं काम क्या। अनुमत में कहते हैं हरि नोरी मार्ग છે સુરાનો, ये कायर ना नहीं काम जो ने। એમ यहाँ પણ પ્રભુનો માર્ગ છે વીરનો, ये कायर ना नहीं काम जो ने। कायर मानस का काम नहीं, आप प्रभु आ तो वीर का मार्ग है। अंतर की दृष्टि करने से, चैतन्य लक्षण का अनुभव होने से राग को परद्रव्य मानते हैं। जे राग को अपना मानते हैं कायर नपुंसक हिजड़ा है। हिजड़ा समझते हैं, नपुंसक होते हैं ना, पावैया नहीं। प्रभु एम कहते हैं पाठ में, जिसका वीर्य गुण है आत्मा में, आत्मा में एक वीर्य आत्मबोध नाम का गुण है, उस उत्तर शक्ति में आ गया है। उसका स्वरूप क्या? वो तो शुद्ध चैतन्य की रचना करे, ये वीर्य अपना शुद्ध स्वरूप में एक वीर्य बल नाम का गुण है। ये अपनी शुद्ध रचना, पवित्र परिणाम की रचना करे, ये वीर्य है। जी पुण्य परिणाम की रचना करे, वीर्य नपुंसक है। जैसे नपुंसक को वीर्य होता नहीं, पुत्र होता नहीं, ऐसे पुण्य पाप परिणाम में धर्म की प्रजा उत्पन्न होती नहीं। सेठ बात ऐसे सागर वाला है, जानते थे? शोभालाल, भगवान दास शोभालाल सेठ, बीड़ी वाला है, बहुत करोड़पति है। आए तो करोड़पति नहीं कहीं कीमत न, यहाँ तो आत्मा की कीमत है। आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप भगवान, इसके जिसको अंतर्मुख होकर स्वीकार दृष्टि में हुआ, उसका आनंद का स्वाद आया, वो लक्षण से
राग लक्षण मेरी चीज नहीं, ये तो परद्रव है। ऐसा भेद ज्ञान, राग से भगवान भिन्न, ऐसा भेद ज्ञान, भेद ज्ञान सिद्धा ये सिद्धा केवल केचनम समर्धिकार में है। अभी तक जो मुनि सिद्ध हुआ परमात्मा सिद्ध, नमो लोये सब सावणम, ये भेद ज्ञान से सिद्ध हुआ है। ये राग से भिन्न करके अपनी चीज की अनुभव करते सिद्ध हुआ है। भेद ज्ञान सिद्धा, सिद्धा एक केचनम, जो कोई मुक्ति पाया है ये सब पुण्य दया दान राग से भिन्न होकर पाया है। और जे कोई संसार में रूलते हैं तसेव अभाव तो बद्धा, राग से भिन्न करते नहीं, राग अपना मानते हैं और राग से मेरे लाभ होता है, ये बद्धा है, मिथ्या से बंधन में होता है, चार गति में रूलते हैं। तसेव अभाव तो बद्धा, बद्धा है केवल केचन, कोई पण प्राणी संसार में बंधन में पड़ते हैं तो भेद ज्ञान का अभाव से बंधन में पड़ते हैं। समझ में आया? आखिरी बात लागे છે ને, લોકો તેથી ખબડાટ કરે છે। अरे वस्तु तो है, मार्ग तो है, जिंदगी का मार्ग तो ऐसा है। अभी छोड़िया बोली थी, नरेंद्र ने छोड़ी है ना 5 वर्ष की। घट घट यंत्र जिन वसे, घट घट यंत्र जैन है। नरेंद्र भाई है ना, उसकी लड़की है 5 वर्ष की छोटी, तो आ शब्द उसको सब याद है। मोढ़े क्या है, जागतो जीव उभो छे ने, गुजराती शब्द है। जागतो नाम चैतन स्वरूप, उभो नाम ध्रुव है ने, अंतर चैतन सत्ता शाश्वत ध्रुव है ने, वो कहाँ जा है? कहाँ वो राग में आते हैं, वो पर्याय में आती है, तो ध्रुव चीज है और उसके उभो है नाम ध्रुव है, और उसकी दृष्टि करने से जरूर प्राप्त होता है। राग से पुण्य से प्राप्त, व्यवहार से प्राप्त नहीं होता। समझ में आया? ये आज बोली थी आप थोड़ी हो, दोपहर को आई थी। घट घट यंत्र जिन वसे, यानी मासिक होती है भाई, 5 वर्ष की लड़की है। घट घट यंत्र जिन वसे, आ शरीर ने घट में जिन वसे, आत्मा जिन है। बनारसी दास का वाक्य है, ये उसमें से सब लिया है। कलश टीका में से बनारसी दास है, समेसा नाटक बनाया है, उसमें आ शब्द पड़ा है। घट घट यंत्र, घट शरीर है, उनमें अंतर में आत्मा जिन है। ये तो वितराग स्वरूप भगवान आत्मा अंदर है। घट घट यंत्र जिन वसे, घट घट यंत्र जैन। जैन पड़ा कोई संप्रदाय वाला नहीं है। इस पुण्य ने पाप का भाव से विरक्त होकर अपना जिन स्वरूप में रक्त नाम लीन होना, उसका नाम घट घट यंत्र जैन कहने में आता है। संप्रदाय का जैन, ये जैन है नहीं। समझ में आया? घट घट यंत्र जिन वसे, भगवान परम वितराग स्वरूप विराजते हैं। ये पर्याय में अवस्था में जो अरिहंत परमात्मा वितराग हुआ, तो वितरागता आई कहाँ से? बाहर से आती है, अंदर में पड़ी है। अंदर तो घट घट यंत्र जिन वसे, घट घट यंत्र जैन। पर मत मदिरा के पान सो मत वाला समझैन। पर अपना मत का अभिप्राय से मत वाला गाना पागल होकर, मत मदिरा के पान सो, मत अपना अभिप्राय का दारू पिया है, यानी पिया उसके कारण से मत वाला समझे ना,
ये अभिप्राय में मत हुआ है राग में कल्याण होगा, व्यवहार करते करते होगा, ये मत वाला पागल हो गया है, गांडा है पागल। ये समझे नहीं अंदर राग से बिन मेरी चीज है, ये समझते नहीं। समझ में आया? वो कहते हैं कारण के शुद्ध चैतन्य लक्षण से मिलते हुए नहीं है। हाँ हाँ हाँ, शुद्ध चैतन्य जानन स्वभाव और आनंद स्वभाव, वो चैतन्य का स्वभाव, उससे वो पुण्य पाप का भाव मिलते नहीं, मिलान होता नहीं, दो एक नहीं, दो बीच संधि है, दो बीच सांझ है, निसंधि है, निसंधि हुआ नहीं। राग की क्रिया ने भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप दो एक हुआ ही नहीं, अज्ञानी एक मानते हैं। समझ में आया? अभी बात है, वो लिखते हैं लक्षण से मिलते हुए नहीं है, इसलिए समस्त विभाव परिणाम यही है। समस्त विभाव चाहे तो दया दान व्रत भक्ति हो, अरे जिस भाव से तीर्थंकर पुत्र बंदे, वो भाव भी विभाव है नहीं है, क्योंकि बंध का कारण है। समझ में आया? विभाव है, जिससे बंधन हो वो भाव धर्म नहीं, धर्म से बंधन होता नहीं। धर्म तो अविकारी निर्दोष परिणाम है, अपना चैतन्य का निर्मल आनंद का चैतन्य का भाव है, वो बंध का कारण होता नहीं, बंध का कारण होता है, ये धर्म नहीं। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? विभाव किया ने, समस्त विभाव किया भाई, तभी मैं ये आ गया ने। हाँ हाँ हाँ, 85 की साल में हम उसमें थे, पहले तो उसमें थे न, 21 वर्ष और 4 मास निगम स्थानकवासी साधु थे। हमारा पिताजी स्थानकवासी था, स्थानकवासी समझे ना, ढूंढिया भूपति के, तो पिताजी था, तो उसमें हमारा जन्म हो गया, तो हम दीक्षित हुआ उसमें। तो दीक्षित हुए में 85 साल थी। हम तो शास्त्र दिगंबर का सब देखते थे उसमें, स्थानकारी संप्रदाय में देखता सब आते थे ना। तो 85 की साल कितना वर्ष हुआ? 49 में एक कम। वो व्याख्यान चलते थे बोटाद संप्रदाय, बोटाद है, उसमें हमें दीक्षित होना। और तो हमारी परिस्थिति तो पहले से बहुत है ना, बहुत मानस, 1015 मानस, 1515 व्याख्यान में। 85 के साल पोष मास, आप पोष मास है ना, तो इतना कहा समग्र स्वभाव में। सेठ 49 वर्ष पहले, 50 वर्ष कम, सभा को बहुत लक्ष्मीपति बैठते थे, लाखों पति, 50-50 हजार की पैदाश आमदनी वर्ष की, सब सेठिया बैठते थे। हम तो कहा कि भैया जिस भाव से तीर्थंकर उद्धव बंद है, ये भाव धर्म नहीं। उसमें थे। और ये पंच महाभारत का परिणाम है, ये धर्म नहीं आश्रव है। खलवाट हमारी तो प्रसिद्धि बहुत थी, उसमें भी प्रसिद्धि थी ना। छोटी उम्र में दीक्षा लिया था, 23 साढ़े 23 वर्ष, और प्रसिद्धि थी। तो सेठिया तो कोई बोले नहीं, पर एक गुरु बहनों न पाए बैठे थे, उसको नहीं रुचि नहीं। बहुत श्री क्या ये सदा मरना चाहिए इनके। मार्ग तो ऐसा है भैया के, तो पंच महावर्त का भाव को भगवान तत्वार सूत्र में 6ठा अध्याय में आश्रव कहते हैं, बंध का कारण कहते हैं। और
जे भाव से तीर्थंकर को तो बंधे, ये भी आश्रय है। आश्रय बिना बंधन होता नहीं। बाकी शुभ भाव तीर्थंकर को बंधने का कारण भी आश्रय राग है। 50 वर्ष की बात है। समझ में आया? बड़ी सभा थी। એ રીતે 185માં કળશનો વિસ્તાર પૂરો થયો. આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ.